I'm sharing my screen. Today is our 12th lecture. सबको दिखाई दे रहा है आप लोगों में से? बोल के बताएंगे. Unmute yourself and say. Yes. Yes, ma'am. Okay. चलिए. So today we'll start with directive principles of state policy. We'll see something main important thing about the Lok Sabha, the Parliament, fundamental duties, in which article they are explained in the Constitution. So all main points we'll see. So directive principles, as we have already discussed, it is taken from Irish Republic to, it is basically for, you can say, for the government, to, you can say, uh, to take care of certain things so that the social and economic level, or you can say in more correct words, it is social and economic democracy should be established within the country. It should not be like few people can, raise their money unlimitedly, and rest of the people they are deprived of, and socially also. So just to maintain a level, just to maintain, you can say, a fair system, so that each and every individual can take the opportunity to, raise his income or financial status within the society. So that's why these directive principles are, you can say, they are the guidelines to the government. It is at the center as well as to the states, so that this agenda can be fulfilled, it can be achieved, the social and economic democracy. So this for this some directive principles are taken from the Constitution of Ireland, and they according to these directives, the government, they take some decisions and policies, so that they can, these policies and these rules or decisions can be in such a way that they establish a social and economical democracy. Then fundamental duties are basically, these are, the some contribution from the citizens for the betterment of, you can say, their lives, as well as socially they have some responsibilities, as well as to the nation, as well as to the different sectors, whether it is anything like to respect the people, you know and to maintain peace and harmony within the society, and also some duties for the environment, and some duties to preserve our culture, our traditions, which are, if somebody don't follow those things, it will go into history. So there are some fundamental duties who citizen can should follow, should obey those duties. And then citizenship. So it is, the fundamental duties are under Article 51, just to maintain the, you can say, the brotherhood, the harmony, the peace, or you can say a cooperation within the different societies, within the different religions, you can say. So brotherhood, you can say, the spirit of common brotherhood should be there. And also there, in this, you can say, there's some actions or some principles they have to follow to maintain the dignity of a woman, of a girl.
and also for our rich heritage, for our culture. So, they should respect and value those rich heritage of our composite culture. It's not that your culture, your tradition, your religion is important and rest others are having, you are least bothered towards them. No, it should not be. And then there are some duties for the environment, like you have to uh, you can say take some actions within your family as well to so that you cannot be a part to harm the environment, to harm the nature. So small steps, if every individual, every citizen of a country take, it will be a great help to to preserve all these things. Basically, if and this depends upon how aware a citizen is, how aware people of that country, people of that nations are. Then there is citizenship. So we, India, like India, always a nation who respect only a single citizenship. All right, uh, if you are living at some other, you can say, in the other countries, and you adopt its citizenship after serving so many years or after fulfilling whatever norms they are having in that country, so your Indian citizenship should no longer be, uh, you can say, valid. So the parliament passed this act, Citizenship Act, in 1955, and according to this, a person may acquire or may lose Indian citizenship, and there are certain criteria to become a citizen of India, like by birth. If somebody has taken birth in our country by birth, they are eligible to have the citizenship. Then by descent means they born outside, but their parents are having Indian origin, so they can apply for for the citizenship. Then by registration, some people who are living for so many years outside, but if they want to come back or live in the same country, in our country, so they can register themselves for the citizenship. Then naturalization is a process by which a foreigner who is like born brought up somewhere else, but who has lived in India for yeah, many years, like more than 10 years or 12 years, or he served the government in any form for at least 7 years or more than that. And if he or she knows one of the official language, then, and also he renounced or he surrendered, or he or she, whoever, surrenders his citizenship of his or her own country of origin, then and also he or she has to take oath for allegiance of India, or to obey the rules, regulations, and loyalty towards the country, and is of good character. Then they can apply for the citizenship through this process, naturalization. Then there is by incorporation of a territory. uh, if they belong to a particular region or a particular territory, then they are also, a part of this country. Then loss of citizenship. Somebody may lose his or her citizenship by renunciation, by termination, and deprivation. Renunciation means a citizen can make a declaration, to renounce or to surrender his or her citizenship, and they have to declare it and register it also. If we are surrendering our
citizenship by their own wish. And then there is a termination. Now, if a person becomes a citizen of another country voluntarily, willingly, then they lose automatically the citizenship of India. And deprivation is if somebody becomes a citizen of India by some registration or naturalization, and it can be, deprived of citizenship if they found, if they register themselves through the false means, illegally, if they found they registered themselves as a citizen. So the government take back the citizenship from them. So these are the ways through which they can lose or they can surrender the citizenship. Then come to, as we have discussed, a parliament. Parliament includes president, Lok Sabha, that is lower house, Rajya Sabha, that is upper house. In Rajya Sabha, we have like 250 members, and out of which some are representative of different states and UTs, and 12 are nominated by the president, and they are having 6-year term, right? 6-year term, and every 2 years, 1/3 of the members retire. So this is, you can say, a permanent body. The people who are elected like this years, after 2 years, they are having the tenure of 6 years, and this system is having such a you can say maintain such a system that 1/3 of the members, they retire every 2 years, and chairman will be the vice president of the country. So this is a Rajya Sabha, that is the upper house of the parliament. And then Lok Sabha, it is having 530 seats from different states, which have been elected by the people of those constituencies or those states. And then 20 from the UTs and 2 Anglo-Indian community. And the tenure will be of 5 years. And chief presiding officer is called the speaker, and this is again elected by the members of the Lok Sabha, generally from the majority, the party who is having the majority in the Lok Sabha. Then there are some spatial powers. Now these spatial powers are of, you can say, Lok Sabha. Lok Sabha enjoys some powers which Rajya Sabha members cannot. First one is, most important one is that non-confidence motion or a confidence motion, both, can be initiated and passed only in Lok Sabha. Then money and financial bills, they have been introduced only in Lok Sabha. And there are basically in whole year, there are 3 sessions. Budget session, which will be in between January to March, April. Then there is a monsoon session, which will be in between July, August, and winter session in between November and December. हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, हमने देखा था कि ये जो हैं, ये कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि जो गवर्नमेंट या फिर कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य और पूरे देश की जो है गवर्नमेंट वो बनाते हैं, और ये एक तरह से चेक है आपके फंडामेंटल राइट्स पे, कि क्योंकि कोई ये आदमी ये ना बोले कि हमें तो इसकी आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उसकी कुछ एक लिमिटेशंस है, तो उसके ऊपर एक चेक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार को पावर देती हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो सरकार को पावर देती हैं कि वे कोई इंडिविजुअल या कोई सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जो
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिमिट तक आती हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो वो उस पे रोक लगा सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली जो ये प्रिंसिपल्स थे वो लाए इसलिए गए थे कि पूरे देश में जो है एक सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, मतलब कहना चाहिए आपके आर्थिक जो है, सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता लाई जा सके। ऐसा ना हो कि कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इतने आगे बढ़ जाएं कि उनके ऊपर जो है पूरे देश की इकोनॉमिक आ जाए, या वही अ, जो है इतना पैसा उनके पास हो और बाकी लोगों के पास जो है वो बिल्कुल ही वो गरीब हो जाए। तो इस तरह से एक लेवल में लाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, और सोशली भी ऐसा ना हो कि कुछ जो तबके के लोग हैं वो बहुत आगे चले जाएं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही नीचे रह जाएं। तो जो नीचे हैं, जो एक लेवल से नीचे हैं, उनको ऊपर लाने की कोशिश सरकार करती है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आर्टिकल 51 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं? आपके कर्तव्य, आपको कुछ अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है, बहुत तरह के कल्चर, बहुत तरह के ट्रेडिशन, रीजन है हमारे यहाँ, लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ही बारे में सोचें, अपने ही समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने कल्चर के बारे में सोचें, अपने धर्म के बारे में सोचें, और दूसरों के बारे में आप ना सोचें। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा जो है कन्फ्लिक्ट्स होंगे लोगों के बीच में, और बेसिकली जो लोग समाज में रहते हैं वही उससे अफेक्ट होते हैं, वही उनको ही परेशानी होती है। तो इसलिए एक हार्मनी का माहौल, एक शांति और आपस में भाईचारे का माहौल हो, इस तरह से कुछ है कि यदि आपने किसी के अगेंस्ट कुछ कहा तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है ना। अपने कल्चर को आप प्रिजर्व कर सकते हो, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन दूसरे के को भी आपको रिस्पेक्ट देना है एट द सेम टाइम। फिर आपका जो वातावरण है, आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो, जैसे नदी बह रही है, नदी का पानी है, या एक मॉरल ड्यूटी बनती है, कहीं नल चल रहा है, फालतू पानी बह रहा है, तो आप कंप्लेन करो या उसको रोकने की कोशिश करो। कहीं पेड़ आपने लगाने हैं, आप अपने आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास जो घर में लॉन है या बाहर है या कहीं कॉलोनी में है, या ओवरऑल भी किसी पार्क में कहीं पे भी आप जो है पौधे लगा सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो, अपना जो कचरा आप फेंकते हो उस पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो छोटे छोटे एक्शन जो एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी बनती है। हर चीज के लिए पनिशमेंट हो, हर चीज के लिए कहना चाहिए कि सरकार आपके पीछे पीछे घूमे, ऐसा जरूरी नहीं। आपको खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको वो फर्ज, आपको वो कर्तव्य निभाने चाहिए। फिर सिटीजनशिप है, नागरिकता, जो आपको कहना चाहिए कि एक नागरिक आप किस तरह से आप एक देश के नागरिक कहलाएंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आप या तो जन्म से वहीं रहते हैं, आपके माँ बाप भी वहीं थे, आपके दादा दादी भी यहीं थे, तो आप बाय बर्थ जो है वो नागरिक बन सकते हो। फिर डिसेंट का क्या मतलब है? डिसेंट का ये मतलब है कि भाई आप कोई ऐसे हैं जिनके की पेरेंट्स बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को जो है वहीं जन्म दिया, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो भारत के नागरिक थे, तो उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई हम यहाँ यहाँ थे, इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर रह रहे हैं इतने सालों से,
तो हम अब वापस आना चाहते हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और उनको सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। फिर एक आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि यदि कोई बाहर का नागरिक आया और वो चाहता है कि भाई अ, इस कंट्री में आ गया, बहुत साल वो रह लिया, है ना? उसके बाद में हो सकता है उसने कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कोई एफिलिएशन होता है ना, 2-3 गवर्नमेंट साथ काम करती है, तो वहाँ उसने काम कर लिया। बहुत सालों तक वो यहाँ पे रह लिया, उसको कोई लैंग्वेज भी आती है यदि, तो फिर और वो चाहता है कि वो यहाँ पे रहे, तो वो जो है वो कहना चाहिए कि वो अ, अप्लाई कर सकता है। उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है कि भई वो जिस भी देश का है, उसको वो सिटीज़नशिप सरेंडर करनी पड़ेगी, उसको वो देश की सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ेगी और अपने देश के मतलब कि इंडिया के लिए वो लॉयल है, उसके लिए उसको एक शपथ लेनी पड़ती है। तो और उसका यदि कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, वो चरित्र रूप से अच्छा है, तो उस केस में जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिर सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसका मतलब ये है कि कोई नई टेरिटरी, कोई नई जगह है जो कि कंट्री का पार्ट बन गई बाद में, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो फिर जो है सिटीजन अपने देश के जो है सिटीजन अपने आप वो हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सिटीजनशिप दी जाती है या कहना चाहिए कि आप एक नागरिक की तरह जो भी आपके अधिकार हैं उनको आप एंजॉय कर सकते हो यदि ये चीजें आप फॉलो करते हो। अब सिटीजनशिप आपको मिल गई लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस भी हैं कि आप वो हो सकते हो, मतलब सिटीजनशिप आपकी ली जा सकती है। तो उसमें रिनंसिएशन है। रिनंसिएशन मतलब क्या है कि अ, अ, आपने जो है एक इंडियन सिटीजन है और उसने ये डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई मुझे अब ये सिटीजनशिप नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को बाहर जाना है। बाहर जाना है तो मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा या जो भी करूंगा, तो फिर उसको अपनी जो सिटीजनशिप है उसको सरेंडर करना पड़ता है और उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है उस चीज को। फिर टर्मिनेशन, यदि जो है कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री का सिटीजन बन गया वॉलेंटरीली, मतलब कि अपने अपनी इच्छा से, तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर डिप्रीविएशन का क्या मतलब है कि जैसे किसी पर्सन ने जो कि जिसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया और सिटीजनशिप ली, लेकिन यदि गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो तरीका उसने अपनाया वो सही नहीं था या उसमें कहीं कोई गलती हो गई या फिर थ्रू थ्रू द ट्रू मीन्स उसने जो सही तरीका है वो नहीं अप्लाई, कुछ तो भी घपला किया उसने, तो उस केस में वो ये ऐसा माना जाता है कि यू हैव डिसरिस्पेक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की आपने जो है अवहेलना की है। तो उस केस में जो है वो अ, उसको उसकी सिटीजनशिप जो है वो ले ली जाती है कुछ सालों के लिए। उसके बाद में हो सकता है कि वो दोबारा अप्लाई करे और जो भी है, लेकिन फॉर द मोमेंट वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है सिटीजनशिप। उसके बाद में पार्लियामेंट में हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो जो राज्यसभा है वो अपर हाउस जिसे कहते हैं, क्योंकि काम सारा जो है वो लोअर हाउस करता है और इसके बाद में कुछ चीजों के लिए उसको राज्यसभा की परमिशन की जरूरत पड़ती है। मतलब वहाँ का 2/3 मेंबर्स जब उसको सील कर देते हैं कि हाँ ये चीज ये इन्होंने बनाया है, ये काम सही है, ये लागू हो जाना चाहिए, तब वो चीज जो है वो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर वो रूल और पॉलिसी बन जाती है। तो इसलिए उसको अपर हाउस कहते हैं। डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस कोई भी कार्य प्रणाली पे, कोई भी
लॉ मेकिंग पे या कोई भी बाकी चीजों पे नहीं है। तो राज्यसभा में जनरली जो है वो 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं। उसमें 238 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, यूटीज के हैं। अब इसमें अलग अलग है, कोई स्टेट बहुत बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ के थोड़े ज्यादा मेंबर्स होंगे। छोटा स्टेट है, यूटी है, उसके कम मेंबर्स होंगे। उसके बाद में 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो है इनका जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है। तो 6 साल तक यदि आप कोई भी मेंबर बना आज की डेट में, तो वो 6 साल तक मेंबर रहता है। और इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्शन और डिसोल्यूशन ये सब चीजें नहीं। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह का है कि 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। हर 2 साल में जो है वो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। और इसका जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। फिर लोकसभा, लोकसभा में जो है वो पूरी जो सीट है वो करीबन 545 के अराउंड होती है, 545 50 के अराउंड। तो उसमें से 530 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो की जनता चुनती है। और 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। इनमें 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। और इनका जो टेन्योर है वो होता है 5 साल का। और इसका जो चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो भी एक तरह से करता धरता है या जो उसके ऊपर सुपरवाइज रखता है, उसको कहते हैं स्पीकर, जो कि चीफ प्रेसिडिंग ऑफिसर है, जो कि उन्हीं में से चुन के आते हैं, एमपी से। स्पेशल पावर जो है वो लोकसभा एंजॉय करती है, क्योंकि सारा जो कार्य प्रणाली है, सारा जो कहना चाहिए कि देश में जो भी कुछ हो रहा है, होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी या फिर कहना चाहिए जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सारा का सारा जो काम है वो लोकसभा में होता है। और यहीं पे जो है किसी भी गवर्नमेंट का यदि कॉन्फिडेंस वोट है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी बजट है जिसे हम कहते हैं मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स, वो भी लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और रोज लोकसभा के सारे मेंबर्स वहाँ नहीं होते हैं। जब इनके सेशन चलते हैं, 3 सेशंस होते हैं जनरली। बजट सेशन जनवरी से मार्च अप्रैल तक, मॉनसून सेशन होता है जुलाई अगस्त में, और शीत सत्र जिसे बोलते हैं विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। फिर जो एक और सुपर बॉडी जो है हमारे देश की, वो है सुप्रीम कोर्ट। सो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट। So Supreme Court is in Delhi, right? Which is you can say a unified and a single judiciary and a single integrated system of courts, for the union, as well as it is having interference to the states, because we are having a federal system, right? The Supreme Court stands at the apex of all the judicial system of India, and it consists of a Chief Justice, who is the authority, a complete authority, you can say, of a Supreme Court, and there are 30 other judges who accompany the Chief Justice. And Article 124 and 217 deals with the appointment of judges of higher judiciary. And these judges are basically appointed by the president, but after consultation of CGI and other judges, जिसको Bar Council हम कहते हैं. So a present system for the same was adopted in 1993, which is known as collegium system. In this collegium system, there are some, elected, experienced advocates and judges.
of the country are there. So this is all about, you can say, Supreme Court. We are looking just a small main points, not going into much detail. Then a term comes, which is union budget. Now, this union budget, or you can say it is a money bill, annual financial statement, you can say, where the government uh, classified it as a money bill, and it is basically presented to the Lok Sabha, and here also it is the recommendation from the president, and this budget is basically a money statement or financial statement of estimated expenditure of the government in the following financial year. So how many, amount of money they are going to spend in a particular sector, the government will, publicly or in the parliament, in the Lok Sabha, they announce it. And there is a scheduled time for it. And then the scheduled session, the whole ministry, the financial ministry, the finance minister will come, and then he read all those, whatever they are planning for the expenditure in the coming year. So all those things uh, they present in front of the members, and then and also there is a proposals for taxation, so that to raise the revenue, and all these are presented in the terms of financial bill. Then there is a very important Ayog, that is Niti Ayog. Niti Ayog, earlier it was called the Planning Commission. All right. This is basically a policy think tank, and this came into existence in 1st of January 2015. Earlier, it was a planning commission, and the aim is more or less same. It involves the state also in making the economic policy. Okay, so it is basically economic policy making IO, or organization, which is government organization. And especially this Niti Ayog is um, formed in 2015. And the chairperson, this basically it provides, strategic and technical advice to the center and state government. The chairperson will be the prime minister, and all the governing council, which comprises of chief ministers of all the states and governors of all the UTs. And there are some members who are the experts and specialists and practitioners, especially belong to a certain area or a certain field. So they can be nominated by the PM, and they are the part of this Niti Ayog. And this is basically, you can say, Prime Minister can invite, they can send a special invites to, some specialists or some well-known people which are having, expertise in a certain area. So to take their advice to, to make the policies in certain area or in certain sector. So that's why they are having, such experts. Now, and also, we are having many areas who are underprivileged sections, or you can say the rural areas. So regional councils will be formed, to address some issues which are related to those areas. And
That's why, they perform such specified tenures. तो हमने पहले भी देखा था कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें जो सबसे पहला जो लीड करता है या जिसके ऊपर जो पावरफुल है सबसे ज़्यादा, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। और इसका जो मेन जो हेड है, जो जज है, उसको कहते हैं चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस के अलावा उस सुप्रीम कोर्ट में 30 अदर जजेस होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 124 217 के अंदर वो अपॉइंट करते हैं जजेस को। और वो हायर जुडिशरी सिस्टम से ही होते हैं, कुछ हाई कोर्ट से भी हो सकते हैं, रिनाउंड पीपल होते हैं, या कहना चाहिए कि अम, जो कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट और सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो मिल करके कुछ जजेस को अपॉइंट करते हैं। और अभी जो सिस्टम है वो फॉलो करता है कोलेजियम सिस्टम को। कोलेजियम सिस्टम भी कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल के, जो कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड और रिनाउंड जजेस होते हैं। उनका इन्होंने एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया है, और वो उसके पास में काफी सारे पावर होते हैं कि वो अपने जजेस, उनमें से ही एक जज को वो रिकमेंड करते हैं सीजीआई बनने के लिए, या फिर सीनियरिटी के बेस पे। तो उस तरह से अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। फिर यूनियन बजट जो होता है वो आर्टिकल 112 के अंदर, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा पूरे देश का बजट है कि आगे आने वाले सालों में अम, अ, जो देश है या जो गवर्नमेंट है, वो किस किस सेक्टर में कितने कितने पैसे का बजट रखती है, कि उनको काम करने के लिए कितना पैसा वो देगी। वो सारी चीज़ें वो उस बिल में रखते हैं। और इसको प्रेजेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं लोकसभा में, जब बजट सेशन होता है जनवरी टू मार्च। तो उसमें वो अपने जो भी चीज़ें हैं वो रखते हैं, पुरानी चीज़ें बताते हैं, नई चीज़ें वो क्या क्या करने वाले हैं वो बताते हैं, टैक्सेशन के बारे में बताते हैं कि आगे आने वाले सालों में किस तरह का टैक्स का टैक्सेशन का किस तरह से कर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे लगेंगे, आमदनी के ऊपर कितना लगेगा, बिजनेस के ऊपर कौन सा बिजनेस है, किस तरह का काम है, उस पे उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर बाकी भी जितना भी टैक्सेशन है वो जो है इस मनी बिल में ही रखा जाता है, सो दैट गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे कमाती है और उस पैसे का यूज जो है वो बाकी जगहों पे वो करती है डेवलपमेंट के लिए। फिर एक है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो बना 1 जनवरी 2015 में। इसके पहले जो कमीशन काम करता था उसको कहते थे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो योजना आयोग और नीति आयोग, ये जो है इनका काम अ, ऐसी स्कीम्स बनाना है, ऐसी कहना चाहिए प्लानिंग करना है एक तरह से, वो स्टेट के लिए भी सेंटर के लिए भी, जो कि आगे आने वाले सालों में प्रोग्रेस की तरफ देश को लेके जाए। अब इसमें हर सेक्टर में जो है वो अम, एक तरह से काम करती है नीति आयोग। तो इसका जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है पीएम के साथ में, वो होते हैं सारे स्टेट्स के सीएम और यूटीज के गवर्नर्स। तो इनकी एक मेन काउंसिल होती है जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसमें और भी मेंबर्स होते हैं जो किसी किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना। मतलब विशेषज्ञ जिसे आप कह सकते हो वो होते हैं, और प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर को यदि ये लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है इसके बारे में ये ज्यादा काम कर सकता है या हमें एडवाइस कर सकता है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें
ये पॉलिसी बनानी है या इसके ऊपर हमें कुछ विचार करना है कि ये इसको कैसे और सुधारा जाए, तो वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करके मेंबर्स बना के और उनकी एडवाइसेस वो लेते हैं। तो इसका नीति आयोग का एक फुल फॉर्म भी है, किसी को पता है? NITI। एनीवन? आवाज आ रही है ना? हेलो? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैम, सुनाई नेशनल सुनाई इंस्टीट्यूशन दे रहा है ना आप लोग को? हाँ जी, हाँ नेशनल जी। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, N stands for national, I stands for institution, for TI transforming India। ठीक है, मतलब जो भी अभी चल रहा है उससे और आगे हम उसको कैसे ले जाएं, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे ऐसे पॉलिसीज बनाएं, कैसे ऐसे स्कीम्स लेके आए ताकि हमारा जो देश है वो आगे की ओर बढ़े। Now then there is a very important act, RTI. RTI is Right to Information Act 2005. Now all the participation and you can say transparency and responsiveness, all these things, they are the, you can say, pillars of the good governance. Okay, if you should have a good governance, or you can call it a good governance, when there is a transparency between the administration, between the government and the citizen. So if a particular citizen finds something which is not appropriate, or which is not as per their desire, as per their, for the development of the people, then they can ask the government, they can question it. So for that, there is a act, RTI, that is Right to Information Act 2005, because the concept of, the good governance was applied in India through the passing of this act, RTI Act 2005. Now, according to, one saying, one quote by the Thomas Jefferson. Now, Jefferson was a president, third president of USA, and he was a philosopher also, lawyer also, and he said once, information is the currency of democracy. All right, information is currency of democracy. Means what is important? Each and everything should be in front of the citizen of India, because all the governance, all the policies, all the regulations are meant for the development of the people. All right, for the development of each and individual citizen of that country. So information, if somebody asks something, why this, how this happened, so government should reply. Government is, answerable for that question. So Article 19A of Indian Constitution specifies that RTI is part of fundamental rights. All right, and it provides right to know, all right, about the functioning of the government. Now, what is the main objectives? To empower the citizen, to make the government more transparent, accountable. It's a check on the government, you can say, directly or indirectly. To prevent and eliminate the corruption, all right, to make the democracy work better, and for better vigilance on the instrument of government. And there is a portal created by Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. And if you raise a question, then there is a time period, 30 days, normal case. You will get the answer and get that done if somebody raise a query. And if it is for the liberty of a person, or if it is related to life, then
within 48 hours you'll get the action or you'll get the answer. तो ये जो RTI है ये बना RTI जो गवर्नमेंट का एक आर्टिकल है 19(1), उसके अंडर जो है ये RTI जो है वो एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का। तो ये 2005 में एक्शन में आया RTI एक्ट जो है वो इसलिए है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो सब फंक्शनिंग जो है गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के कार्य प्रणाली जो है उस पे वो क्वेश्चन कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। कोई भी चीज आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हो तो इस एक्ट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो उस पोर्टल में और आपको आंसर जो है वो मिल जाता है, 30 डेज में मिल जाता है। और यदि वो बहुत अर्जेंट है, इफ इट कंसर्न्स टू सम लाइफ और किसी ये स्वतंत्रता का प्रश्न है यदि या कुछ सीरियस मैटर है तो 48 घंटों के अंदर आपको उसका आंसर गवर्नमेंट का जो है वो उसको देना पड़ता है। तो बेसिकली क्यों बनाया गया ये इसलिए बनाया गया कि आम जो जनता है जिसने कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, उसने कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक पोजीशन पे भेजा है, उसको अथॉरिटी दी है कि भाई आप काम करिए, आप पूरे जो पावर्स हैं वो लीजिए और हमारे लिए काम करिए। लेकिन यदि किसी को लगता है कि भाई नहीं ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हुआ था, तो वो आप पूछ सकते हो। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बनती है, मतलब सरकार और जनता इसके बीच में क्लियर कट चीजें होनी चाहिए कि ये एक्शन लिया तो वो इसलिए लिया गया, इसमें ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, मतलब किसी भी फील्ड के बारे में आप कुछ चीजें उनसे पूछ सकते हो। तो इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और करप्शंस के ऊपर जो है वो एक लिमिट लगती है उसमें या रोका जा सकता है उसको कि भाई उसमें इतने पैसे खर्च हुए, इतने पैसे लगे, तो ये कहाँ से लगे, कैसे लगे, इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो जनता पूछ सकती है। फिर एक क्योंकि यही रोल है जनता का, एक्टिव रोल होना चाहिए, है ना। आप को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम टैक्स देते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टैक्स आप हर चीज पे दे रहे हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो पैसा वो गवर्नमेंट किस किस तरह से खर्च करती है तो उसको जानने का हक आपको है। तो इसी को कहते हैं प्रजातंत्र, है ना। तो इस पे जो है एक सजगता आती है, गवर्नमेंट भी सजग होती है, सतर्क होती है और आम आदमी, आम इंसान, आम नागरिक वो भी सतर्क और सजग उसको भी होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। आप उसके लिए काम करते हैं, बदले में गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, बहुत सारी प्रोटेक्शंस देती है, बहुत सारी राइट्स देती है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो पोर्टल बना RTI का, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, मतलब ये इसको बोलते हैं कार्मिक जो ग्रीवेंसेस का मतलब है शिकायत, कंप्लेंट टाइप। तो कार्मिक लोक शिकायत विभाग है, पेंशन विभाग, वो जो है इसको मेंटेन करता है। फिर एक और चीज आई, लोकपाल एंड लोक आयोग। Now Lokpal and Lok Ayog, this is again for you can say which provides the main objective is to prevent corruptions in various sectors. Main objective was that Lokpal was basically established uh, for the central government and Lok Ayukt at different states. So the purpose is same. The purpose is to prevent the corruption, you can say, because these institutions are statutory bodies without any constitutional status, but the power is given them so that they can
if somebody raises a question, or if some individual person is raised a question, or raised a complaint against a department, against you can say a society or organization, then they have to look after that. They have to, investigate whether this complaint is right or wrong. So they have to take action if somebody, put a complaint against someone. So this idea is basically came into, existence in the year 1809 in Sweden first. This type of, a formation of organization, you can say. And then they later adopted by the various other uh, countries, and we adopted first time this concept of constitutional ombudsman was first proposed by uh, law minister in 1960s. And this was, you can say, earlier it was uh, of a different form, uh, which a commission established and recommended the setting of, these two independent authorities, and started in 1968 till 2011. They took some action, and in 2005 again they administered, and again a committee recommended the formation of this, and finally uh, in 2013 in both the houses they passed the bill, and then it came into existence. Now then there is a GGI. GGI is Good Governance Index. This is again released by, you can say, um, Union Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. And it is having, there are, in different states, they have a check, or they, you can say, supervise under 10 sectors. They take into consideration, like what is the agriculture and of that particular state, what about the commerce and industry in that particular state, then what how this HRD, that is human resource development, works, then what is the condition or the level of public health, then public infrastructure and utilities, then economic governance, how the economic governance state is there in particular region, then social welfare and development, and what about the judicial and public security in that particular state, and what about the environment and citizen-centric governance? If there is some complaint or by the citizen, how is there any provision to look after those complaints, or there are day by day the complaints are increasing? So like that, they are having 10 sectors, and they rank them. So at present, the GGI, you can say, level, this Tamil Nadu topped, okay, among the other big states. And this was as per 2019 data. The Tamil Nadu is on the first rank, then Maharashtra, then Karnataka, then Chhattisgarh, and then uh, Andhra Pradesh. I took first 5, and I think this much is enough. Right? So all they supervise, or they uh, take into consideration these मैम sectors. हिंदी में समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं एक बार हिंदी में बोलती हूँ, एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ। अभी मैंने हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट किया, अब इंग्लिश हिंदी में चलते हैं। अब जो आया आपका, अभी हमने पढ़ा RTI एक्ट, उसके बाद में ये आया लोकपाल और लोकायुक्त।
तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये पास हुआ ये बिल 2013 में। स्टार्ट तो ये काफी पहले हो गया था। फर्स्ट टाइम जो इस तरह का कंसेप्ट आया कि ये भी बेसिकली जो करप्शन होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे उसको एक तरह से रोकने के लिए इसका गठन किया गया। जैसे किसी आदमी को या किसी सिटीजन को किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या फिर कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट इसमें जो है ये धांधली चल रही है या फिर यहाँ जो है पैसे लेके काम हो रहा है या इस तरह का कुछ भी उसको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम, तो वो कंप्लेन कर सकता है ये दो बॉडीज में। तो लोकपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लोकायुक्त जो है हर स्टेट में होता है और वहां पे वो अपनी कंप्लेन जो है वो रख सकता है। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो उस कंप्लेन को देखता है, उसके ऊपर कार्यवाही करता है, उसकी जांच करता है कि सही है नहीं है। यदि सही है तो उसके ऊपर वो फिर एक्शन लेता है। तो पहली बार जो ये कंसेप्ट है वो 1809 में स्वीडन में आया। उसके बाद में जो है कहना चाहिए कि इंडिया में धीरे धीरे समझा गया कि इसकी जो है वो जरूरत है। तो 1960s में एक बार ये लॉ मिनिस्टर ने, जो वो उस समय के थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने ये रेज किया। तो धीरे धीरे इसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर एक कमेटी बनी, फिर उसने कुछ रिकमेंडेशंस डाली और धीरे धीरे जो है कभी कहीं अटक जाता था ये बिल, कहीं कहीं कभी कहीं अटक जाता था। तो धीरे धीरे चलते चलते ये 2013 में जो है इसको दोनों जगहों पे से इसको रिलीज किया गया, दोनों हाउसेस जो है हमारे पार्लियामेंट के, और उसके बाद में जो है ये एग्जिस्टेंस में आया। तो ये है लोकपाल और लोकायुक्त, इतना जानना काफी है। उसके बाद में आता है जीजीआई। जीजीआई है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये भी जो है यूनियन मिनिस्ट्री है जो कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन विभाग, उसका उन्होंने इसको इंडेक्स को लाए और उसमें जो है 25 दिसंबर को लागू हुआ था। तो इसलिए जो जीजीआई डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, और ये जो है वो पूरे स्टेट्स के 10 सेक्टर में देखते हैं कि किस स्टेट में किस राज्य में इन 10 चीजों में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या प्रोग्रेस हुई, पहले क्या था अब क्या हुआ। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, एचआरडी है, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स कैसे हैं वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जो पब्लिक के लिए है, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया या पब्लिक के लिए जो हॉस्पिटल्स बनाते हैं या सड़कें बनाते हैं, है ना, या जो भी सार्वजनिक जो जगह हैं, पार्क है या और भी जो सरकारी जो सरकार बनाती है, जैसे रोड बनाती है या बस स्टैंड बनाती है, या फिर कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कि अ, शौचालय वगैरह हैं या मार्केट के लिए जगह देती है या बहुत सारी चीजें हैं। तो वो किस तरह से है और उसका जो फाइनेंस है, उसका जो आर्थिक स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे है, किस तरह से वो राइज कर रहा है कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, उसका कितना डेवलपमेंट है, जुडिशरी वहाँ की कैसी है, किसी ने कंप्लेन किया, किसी ने कोई केस किया तो उसको कोर्ट सुन रही है कि नहीं सुन रही है, या डिसीजन कितने टाइम में आ रहा है, या कितने केसेस पेंडिंग है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। इन्वायरमेंट मतलब कि आप पर्यावरण के लिए कितना काम वहां पर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जंगल के जंगल साफ हो गए या नदियां गंदी हो रही हैं या फिर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो इस तरह की चीजों पे वो ध्यान देते हैं। और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मतलब सिटीजन यदि कोई तकलीफ लेके आ रहा है, कोई परेशानी लेके आ रहा है, कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, तो उस पर सुनवाई हो रही है। तो ये सारी चीजों को देख करके वो सर्वे करते हैं और सुपरवाइज करते हैं और फिर उनको ग्रांट करते हैं। तो तमिलनाडु जो है 2019 के हिसाब से पहले नंबर पे था, है, और अभी का तो डेटा नहीं है मेरे पास। तो अकॉर्डिंग टू 2019 तमिलनाडु पहले नंबर पे था, हमारे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटका तीसरे पे, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पांचवे पे आंध्र प्रदेश।
अब ये चीज आपकी बच जाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो we'll see it tomorrow because today time is over, because it also takes some time. So tomorrow we'll see this and also some question answers. Okay, which is